Welcome to my channel. If you like my videos, then kindly subscribe, like and watch. Thank you. Today we will cover two lectures. These are one lecture is short lecture. The second one will also take some time. So let's start with a small lecture that is you can say key. Uh, is सर this आपकी screen is आवाज़ बहुत visible कम to आ you? रही है। आवाज कम आ रही? मैंने तो हैंड फ्री भी लगाया हुआ। अब सही है? यस सर अभी सही है। Okay. Okay, let's start with this new lecture that is about keys, type of keys. So, first of all, what is key? So, in mechanical engineering, a key is a machine element that is used to connect a rotating machine element to a shop. These key prevents relative motion or relative rotation between two parts and may able में इनेबल टॉर्क ट्रांसमिशन। तो की जो है वो एक मशीन एलिमेंट है जो कि किसी भी रोटेटिंग मशीन एलिमेंट को जो है वो शाफ्ट से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यू हैव रोटेटिंग मशीन एलिमेंट्स that is gear or pulley or any other rotating part of or element of the machine and that is connected with shaft क्योंकि shaft है shaft उसको rotation देगा shaft is generally मशीन एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर। ठीक है ना? तो अब वो पावर किस तरह ट्रांसमिट होगी क्योंकि शाफ्ट जो है वो रोटेटिंग एलिमेंट है, वो भी रोटेटिंग एलिमेंट है और वो पावर ट्रांसमिट करने के लिए शाफ्ट के ऊपर देयर मस्ट बी another rotating elements that is used to transmit that will help us in transmitting the power that the other element may be gear, pulley, or any hub that is connected with this shaft. So generally a key is a machine element and that is used to connect a rotating machine element to a shaft, and its main purpose is to prevent relative rotation between the two parts and enable torque transmission. एक जाहिर है ये देखें, let's say that is a shaft and that is a hub, or you can say a gear, a pulley, etc. Now this gear or hub that will be connected on this shaft. So let's suppose if there is nothing between them, so maybe at higher speed of the shaft, it may slip in this hub. क्लियर? सो जब ये आगे आपको समझ आ जाएगी जब जाहिर है इस शाफ्ट ने आके यहाँ पे लगना है, ठीक है ना? और जब ये शाफ्ट हाई स्पीड पे रोटेट करेगा तो ये भी उसके साथ रोटेट करेगा। बट व्हेन this shaft this hub or gear or anything that is rotating element on the shaft will come in contact with another gear or something another rotating part, ठीक है ना? So forces will act on this hub and due to high forces it may slip क्योंकि ये देखिए ये शाफ्ट इसके अंदर होगा और ये शाफ्ट रोटेट करेगा, ठीक है ना? दैट हाई स्पीड जो है वो इन दोनों के दरमियान स्लिपेज हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉपर टॉर्क ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? सो फॉर दैट पर्पस वी नीड सर्टेन एलिमेंट दैट इज जिसे हम कहते हैं की, ठीक है ना? एंड दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द स्लिपेज बिटवीन these two surfaces and help in transmitting torque. क्लियर? सो की डेफिनेशन मैंने आपको फिर बता दी, दोबारा बता देता हूँ। की इज अ मशीन एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू connect a rotating machine element to a shaft and it helps us in transmitting the torque. It is used to prevent the rotation of pulley, gear, etc. on their shaft. पहला अगर आप सेंटेंस देखें तो it is used to prevent rotation of pulley, gear, etc. on their
शाफ्ट कि वो उसके ऊपर रोटेशन ना कर पाए। जाहिर है देखिए ये जब ये शाफ्ट है और ये अगर पुली है, गियर है वगैरह है, ठीक है ना, तो ये इस पे आप जब फिक्स कर लेते हैं तो आपका मेन एम ये होता है कि जब ये शाफ्ट रोटेट करे तो ये पुली और गियर इसके साथ रोटेट करे, ठीक है ना। ये ना हो कि शाफ्ट भी रोटेट करे और उसके साथ ये भी रोटेट करे। सो इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द रोटेशन ऑफ पुली गियर ऑन देयर शाफ्ट। So, uh, another definition of key is a piece of metal placed so that part of it lies in a groove called key seat cut in a shaft. ये क्या है? की जो है वो एक पीस ऑफ मेटल है। सो इस तरह प्लेस किया जाता है कि इसका कुछ पोर्शन जो है वो शाफ्ट में आता है और कुछ पोर्शन जो है वो हब में आता है, या गियर कह ले या पुली कह ले, ठीक है ना। और जाहिर है जब वो की आपका कुछ पोर्शन शाफ्ट में आएगा और कुछ हिस्सा जो है वो हब में आएगा, तो उसी की शेप आपने शाफ्ट में भी कट करनी है और हब में भी करनी है, ठीक है ना। नाउ द पोर्शन आर द ग्रूव, इसे हम कहते हैं ग्रूव। अगर आप देखें तो ये देखें, ये इस तरह कटा हुआ है इसके शाफ्ट के ऊपर से, ग्रूव। तो जो हिस्सा की का आप शाफ्ट के ऊपर काटते हैं ताकि की उसमें जाके बैठे या उसमें स्लाइड करे, ठीक है ना, तो इस हिस्से को हम कहते हैं की वे, की सीट, सॉरी की सीट, ठीक है ना। और वो पोर्शन की का जो जाके हब में आएगा और जो आपने हब में काटना है, ठीक है ना, सो दैट पोर्शन इज नोन एज की वे। जुमला फिर पढ़ें। A key is a piece of metal placed so that part of it lies in a groove called key seat. Now this groove is cut into the shaft, and this groove is known as key seat because the key has to seat in this groove. Clear? And that is cut in a shaft. The key then extend above the shaft and fit into a key way cut in a hub. Majorly half of the portion of key will be in key seat and half of the portion will be in a key way that is cut into the hub. Now what is the purpose of creating these grooves in shaft and hub? By creating these grooves in shaft and hub, when you will insert the seat will when you insert this key, it will seat in this groove, and after assembly the key is partially in the shaft and partially in the hub. आपका आधा की जो है या पार्शल जो की है, कुछ हिस्सा उसका वो इसमें बैठ जाएगा और उसका ऊपर वाला कुछ हिस्सा जो है वो that will be seat in hub. So it will result in locking the two together, and so one cannot rotate without other. तो इससे ये होगा कि आधा पोर्शन इसमें है पड़ा हुआ है इस की का और आधा पोर्शन इसमें है, ठीक है ना। ये जो है दोनों, ये की जो है वो दोनों को लॉक कर देता है। लॉक करने के बाद क्या होता है, दे कैन नॉट मूव सेपरेटली। क्लियर? तो जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा तो उसके साथ जो है वो ये हब भी रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो उसके दरमियान जो है वो स्लिपेज भी नहीं होगी और ये नहीं होगा कि जो है हब, पुल्ली, गियर एक्सेट्रा जो है वो शाफ्ट के ऊपर रोटेशन सेपरेटली करे, ठीक है। क्लियर? समझ आ गई? यस सर। अच्छा, हमारे पास जो है फिर गियर्स कीज के टाइप्स हैं, इसको देखते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कीज, जिसमें द फर्स्ट वन इज स्क्वायर की, द सेकंड वन इज फ्लैट की, एंड द थर्ड वन इज वुड रफ की। नाउ फ्रॉम स्क्वायर की वी मींस दैट key will be of square in cross sectional area. You will see their picture in the next slides. So square keys are square in cross sectional area, ठीक है ना, and they are placed half in the shaft and half in the hub, square in cross sectional. While flat key,
So flat key is rectangular other than square. For example, rectangular in cross sectional, and it is used in the same manner as square key because half of the portion will be in the shaft, or you can say key seat, and half of the portion will be in the key base. The third one is Woodruff key. So Woodruff key, it is a flat segmental disc with a flat or round bottom. It will, I will show you here. It will be clear, but sorry, here Woodruff key. So first, let me define the things. Woodruff key is a flat segmental disc with a flat or round bottom. The key seat is semi-cylindrical and cut to a depth so that half of the key of the half the width of the key extends above the shaft and into the hub. अच्छा, पहला है स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल, दूसरा है रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शनल, और वुडरफ की जो है वो सिमी वो है, आप एक इसको कह सकते हैं सिमी सिलेंड्रिकल है। सिमी सिलेंड्रिकल से मुराद ये है कि अगर आप लेट से एक सिलेंडर है उसको बिल्कुल हाफ से काट दें, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड सिमी सिलेंड्रिकल। यहाँ से आपको भी समझ आ जाएगी। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपको एक व्यू दिया हुआ है स्क्वायर की का, ठीक है ना, जिसमें अगर आप देखें तो ये एक स्क्वायर की है, फ्रंटल व्यू है। ये पोर्शन जो है ये छोटा सर्कल, दैट रिप्रेजेंट एक्चुअली द शाफ्ट लेयर, एंड दिस बिगर सर्कल जो है उसके अंदर ये एक हॉलो पोर्शन है ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ शाफ्ट, उसमें शाफ्ट को इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है ना, और फिर स्क्वायर की लगाई हुई है, ठीक है ना। तो अगर आप इस शेप को देखें तो ये स्क्वायर है, ठीक है ना। सो इट इज प्लेस हाफ इन द शाफ्ट एंड हाफ इन द हब। अब इस स्क्वायर की के लिए जब इस बाकायदा इस की को डिजाइन भी करते हैं, इसकी साइजेस कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ आपको अगर आप देखें साइड व्यू से नजर आएगा। ये बकाया आपको मशीन डिजाइन में सिखाया जाएगा कि की को किस तरह डिजाइन करते हैं, उसकी शेप क्या होनी चाहिए या उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ टाइप्स की। तो अगर आप देखें तो इसका हाफ पोर्शन जो है वो शाफ्ट के अंदर, शाफ्ट में ग्रूव कट किए होते हैं जिसे हम की सीट कहते हैं, ठीक है ना, और हाफ पोर्शन इसका हब में होता है जिसे हम कहते हैं की बेस। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इसमें दरमियान में स्क्वायर पोर्शन एम्प्टी हो जाता है, ठीक है ना, एंड देन वी हैव टू इंसर्ट स्क्वायर की इन दिस पोर्शन अप टिल रिक्वायर्ड लेंथ। ये अगर आप इसको देखें तो ये उसका सेक्शनल व्यू दिखाया गया हुआ है। तो ये जो है, ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ये वो स्क्वायर की है, और ये जो नीचे डॉटेड लाइन लगाए हुए हैं ये बताया गया है कि जो ये शाफ्ट है इस पे जो ग्रूव काटा गया उसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, और ये पोर्शन जो है वो ये जो हैच हुआ है ये हब है। क्लियर, समझ आ गई इसकी? Okay. Yes, sir. Okay. Flat key, that is of the same thing as that of square key, but you can see that the key is not square. Here it is rectangle. Rest all the thing that I explained in square key is same as that in flat key. अगर आप देखें तो इसमें ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन है, ये वर्टिकल, तो इस वर्टिकल डॉटेड लाइन से लेके इस वर्टिकल डॉटेड लाइन तक जो टोटल डिस्टेंस है ये की लेंथ है, ठीक है ना, और ये की का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट इज रेक्टेंगुलर। बाकी ये शाफ्ट है और ये दैट इज हाफ। एंड व्हेन यू विल इंसर्ट द की, सो दिस की विल लॉक दिस hub and shaft, and it will rotate as a single entity and there will be no slippage. The third one is jib head key and the fourth one is semi-cylindric Woodruff key. Now jib head key is actually, you have noticed that in square key and flat key there is no head available, and you can see, अगर मैं इसको zoom करूं तो अगर आप देखें इस जगह तो ये की जो है वो
इसके अंदर हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म, तो ये थोड़ा डिस्टेंस है, थोड़ा डिस्टेंस है। ऐसी की को निकालने के लिए देन वी रिक्वायर्ड सर्टेन थिंग, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इसमें फिर हमने हैमर से इसको हथौड़े से मार के जो है वो निकालना पड़ता है, तो मे बी दैट मे डैमेज द सिस्टम, ठीक है ना। या अगर की छोटी है तो उसको फिर जो है कंट्रोल करना या पकड़ना वो मुश्किल हो जाता है। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव जिब हेड की, ठीक है ना। और जिब हेड का क्या है कि इसका हेड जो होता है वो बायर होता है, यू कैन इजीली पिक फ्रॉम द हेड, या आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ थ्रू आउट द लेंथ अगर आप देखें तो जिब हेड की का जो है वो थ्रू आउट द लेंथ जो है वो दैट इज अ टेपर्ड पार्ट पोर्शन, ठीक है ना। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जिब हेड है, या ये देखें यहाँ से ये की शुरू हो रही है और इसकी थ्रू आउट लेंथ यहाँ तक, ठीक है। अगर आप तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डायमेंशन चेंज है और यहाँ पे डायमेंशन शॉर्ट है, मीन्स कि दिस पार्ट इज टेपर्ड, इट इज अ टेपर्ड की आप कह सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज द डायमेंशन इज वेरिंग एट एवरी क्रॉस सेक्शनल, अगर आप किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जाएं तो इस की डायमेंशन जो है वो चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड टेपर्ड, ठीक है ना। सो जिब हेड की इज टेपर्ड ऑन इट्स सरफेस, अपर सरफेस, एंड इज ड्राइवन इनटू फॉर्म अ वेरी सिक्योर फास्टनिंग। अच्छा, ये टेपर्ड है, ठीक है ना। ये की तो जाहिर है की वे और की सीट जो है वो भी उसी हिसाब से टेपर्ड ही बनेगी। क्या कोई बता सकते हैं क्यों ये टेपर्ड बनाई गई है, ये क्यों टेपरिंग का यहाँ पे क्या फायदा है, एनीवन जो आंसर कर सके। सर वो मजबूत होता है ना, ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। स्ट्रेंथ किस तरह ज्यादा होती है? जी, कोई और बता सकता है? अच्छा, इस तरह है ना कि टेपर्ड पोर्शन, एक तो ये है कि इसमें ये टेपर्ड पोर्शन को इंसर्ट करना और फिर निकालना आसान है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो एक ये है कि अगर आप स्क्वायर की को देखें या रेक्टेंगुलर की को देखें, ऊपर जाता हूँ, तो इसमें ये पूरी की पूरी सरफेस जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक, जो कि की हब के साथ एंड शाफ्ट के साथ इन कांटेक्ट है, ठीक है ना। तो इसको निकालने में या इसको इंसर्ट करने में आपकी काफी सारी फोर्स लगती है, क्योंकि ये सरफेस इन कांटेक्ट है शाफ्ट के साथ और ये सरफेस इन कांटेक्ट है हब के साथ। सो देयर इज अ फ्रैक्शनल फोर्स बिटवीन दिस सरफेसेस, ठीक है ना। उसको आप निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू टेपर्ड पोर्शन। वाइल अगर आप टेपर्ड को देखें, कहाँ गया है टेपर्ड, यहाँ पे, तो इसमें देखें अगर आप इसको एक लेट से, ये एक किस्म का टाइट है इसमें, ठीक है ना। लेकिन जब आप इसको एक एंड से या इस की को आप थोड़ा जर्क दे के या किसी तरीके से आप थोड़ा भी इसको लूज करते हैं, तो ये जो ये पोर्शन है ये थोड़ा इस तरफ मूव हो जाता है। जब इस तरफ मूव होता है तो ये तो ऑलरेडी ये यहाँ पे जो डायमेंशन है वो इस डायमेंशन से कम होती है, तो ये की आसानी से जो है वो लूज हो जाती है और आसानी से ये निकल जाती है, तो आपको इतनी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दूसरा, चूंकि एक टेपर्ड पार्ट है तो इसके हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो, उसमें हर एक पोर्शन पे जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो काफी मजबूत है बनिस्बत अदर उसके, ठीक है ना। इसीलिए जो है वो दे आर वेरी सिक्योर इन फास्टनिंग। ये भी असल में एक किस्म के फास्टनर्स है, क्योंकि ये दो चीजों को जॉइन करते हैं, ठीक है। The fourth one is wood rough key. Now this wood rough key is a flat segmental disc, or you can say semi-cylindrical disc with a flat or round bottom. अगर आप इस की को देखें तो ये की फ्रंट व्यू में इस तरह इंसर्ट हुई हुई है ना। लेकिन जब उसका साइड व्यू देखें तो ये उसका सेमी सिलेंड्रिकल है या सेगमेंटल डिस्क है, जिसका एक पोर्शन जो है वो राउंड है और दूसरा जो है विद अ फ्लैट और राउंड बॉटम, ठीक है ना। द की सीट इज सेमी सिलेंड्रिकल एंड कट
to a depth so that half of the width of the key extend above the shaft and into the hub. वही बात है कि इसको इस तरह कट किया जाता है कि इसका हाफ पोर्शन जो है वो शाफ्ट में हो और हाफ पोर्शन जो है उसका हब में हो, and they lock the two together so that they cannot move separately. The fourth, another thing, that is cotter. Now, what is cotter? Cotter is a flat wedge-like piece of steel used to fasten rods. ठीक है ना? अच्छा, एक याद रखिए, की का हमने कहा था, की क्या है? की is a machine element and that is used to prevent the rotation of any gear or shaft on, gear or hub or pulley on their shaft is and used to transmit power. Now, cotters are also machine elements and these are flat wedge-like pieces of steel and these are used to fasten rods. ये rods को याद रखिए, cotter हमेशा rods को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं. आपने देखा होगा आपके पास सर्कुलर रॉड्स हों, ठीक है ना, लेट्स से आपको नीचे एग्जांपल में मैं दिखा भी दूंगा, आपके पास दो पीसेस हैं रॉड के और उसको आपने ज्वाइन करना है. एक तरीका तो ये कि आप उसके अगर परमानेंट ज्वाइन करना है तो उन दोनों रॉड्स को यू हैव टू वेल्ड द टू रॉड्स टुगेदर, ठीक है ना. द सेकंड मेथड इज कॉटर. कॉटर मींस दैट यू हैव दिस फ्लैट वेज लाइक शेप स्टील pieces and the same shape will be also cut in your rods, and when these two rods are joined you have to insert this cotter in the joining rods so it will join them and these rods are subjected to axial force only. जिस तरह आपने देखा होगा ट्रक और ट्रॉली, ठीक है ना, तो ट्रक और ट्रॉली को जब ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर एक रॉड सा इंसर्ट किया जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है वो दोनों ज्वाइन हो जाते हैं. अगर आप देखें तो ट्रक भी फॉरवर्ड मूव करता है और चूंकि ट्रॉली है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. तो ट्रक आगे की तरफ और रिएक्शन फोर्सेस इस तरफ, सो दैट इज सब्जेक्टेड टू द एक्सियल फोर्सेस ओनली, ठीक है ना. एग्जाम्पल को देखें कि ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉड है, स्टेप रॉड है, अगर आप देखिए क्रॉस सेक्शनल लिखा है, ये एक रॉड है, ठीक है ना, और ये एक दूसरा, देयर इज अ सेकंड रॉड एंड यू वांट टू जॉइन देम, ठीक है ना, बट नॉट परमानेंट जॉइंट, दैट इज टेम्परेरी जॉइंट. सो आप अगर देखें तो इस शाफ्ट के दरमियान भी होल हुआ है और इस जो है शाफ्ट या रॉड को कह लें इसके दरमियान भी थ्रू आउट होल हुआ है. So you have to insert your cotter in between these two and it will make them a single entity. Okay? That is cotter joint for round rod. Similarly, ये देखें आप, ये वही एग्जांपल है कि ये that is a first rod and that is second rod. So you have to insert a rod in between these two. So that is known as cotter joint. Now, if you have multiple, you want to have a very secure connection. So you can see this example. This is a shaft there, and this is another circular shaft, or you can say a rod. And you want to, so you have to insert two cotter. And this type will be known as sleeve and cotter joint. अगर आप देखिए here, सर इसकी शेप यूनिफॉर्म क्यों नहीं है क्वार्टर की? बच्चे इसकी भी वही एग्जांपल है ना, देखिए अगर आप इसको हो गया तो ये भी इसी तरह है कि वेज लाइक शेप है ना, ताकि उसकी इंसर्शन भी इजीली हो और दूसरा ये है कि इसको आप आसानी से भी निकाल सकें. अगर लेट इमेजिन कि अगर ये सर्कुलर ना होता, सॉरी ये इसी तरह टेपर्ड ना होता, ठीक है ना, तो जो ही आप की इंसर्ट करते तो वो सरफेस जो है वो इनिशियल सरफेस के साथ इन कांटेक्ट आ जाती और आप फिर उसको हैमर से मार के उसको अंदर करते, ठीक है ना, और Yes, जब sir, निकालना भी होता तो आपको काफी मुश्किल से इस कीज को या इस काटर को निकालना पड़ता.
लेकिन चूंकि टेपर्ड है तो ये देखिए ये पोर्शन, ये डायमेंशन जो है वो इस डायमेंशन से कम है, तो ये जब आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये आसानी से नीचे आ जाएगी। लेकिन जब आप उसको एक दफा या दो दफा हथौड़े से मारेंगे तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन ये नीचे आने लगेगा और यहाँ पे एक टाइट कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? ये तो लेक्चर का पहला पोर्शन था ना, इसको आप एक कंसीडर करें। दिस इज अ लेक्चर नंबर 6, ठीक है ना। तो मैं भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर हैं तो बताएं, फिर अगर नहीं है तो फिर मैं इसको इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं। सो दैट विल बी लेक्चर नंबर 6 और हम फिर लेक्चर नंबर 7 की तरफ जाते हैं। सो प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। मैं एक दफा फिर पीछे की तरफ जाता हूँ, इस स्लाइड में कोई आपको कोई कंफ्यूजन अगर नहीं है तो मैं, आपकी खामोशी मुझे पता चल जाएगी, मैं आगे की तरफ मूव करता जाऊंगा। अगर है क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन पूछें। ओके, नो क्वेश्चन। So that was lecture number 6 regarding keys. That was a short lecture. I will now start lecture number 7. That is a conversion of orthographic views into isometric views. ठीक है ना? So I'm going to stop this recording and again I have to start the recording. So up till now, this portion, that is the lecture number 6.